members, Chartered Accountants, joining us today for another enriching session of Golden Charcha. I'm CA Rashi Santhalia of coordinating today's session. Golden Charcha has truly emerged as a golden initiative by EIRC of ICI, bringing cutting-edge knowledge directly to our screens. This initiative reflects our commitment to continuous professional development and ensuring that every member of our fraternity stays equipped with the latest tools and techniques. Before we proceed, I would like to express our heartfelt gratitude to CA Vishnu Kumar Tulsiana, Dynamic Chairman of EIRC, who has made these sessions possible. So our topic for today is financial freedom, and our special addressee is CA Megha Murarka. I'd like to welcome you, ma'am, and over to you. Good evening, everyone. Good evening. Thank you so much. Thank you so much for the warm welcome. Thank you so much, Lalit sir. My special gratitude for our chairman, sir, for welcoming for such a wonderful topic, financial freedom, which each one of us, being professional, being entrepreneur, being a salary people, being a housewife, being a homemaker, being any person can relate to this topic. Because this topic doesn't relate with our profession only, it relates to each one of us. First of all, I want to define this topic a little bit with permission of Lalit sir. Yes. Yeah, the financial freedom is not about having super luxury lifestyle. Financial freedom is not about working again and again. It's neither about being super wealthy. So it's not that we don't have to work at all, or it's not about that. It's about a point of time where we can have we can do anything without being dependent on a particular person or particular money or particular source of income. A point of time where what we can achieve what we want without being dependent on a particular thing, if I'm not wrong, Lalit sir. So bringing light to this topic, I want to enumerate some topics, some points what where we can inculcate in our working, so that we can plan the financial freedom for us. Like, what we can do is we should start investing early. We should not dependent on only one source of income. We should diversify our investment from the very early age. We should not go for high debts. And many more things are there which we can bring into our everyday practice. Being a small age person, being a big age person, being a mediocre age person. Having said this, I will ask Lalit sir, to being an expert on this topic, to give us the detailed discussion on this topic. Over to you, Lalit sir. Thank you so much. Thank you, Megha, for explaining this topic very beautifully. So before you proceed, I would just like to give a brief introduction. Uh, Thank you, ma'am, for such a brief and accurate introduction of the topic. So, our esteemed speaker for today is CA Lalit Kumar Pransakha. He's a distinguished chartered accountant and a DISA qualified professional with over 20 years of experience in income tax, company law, statutory audit, and tax audit. As the founder and CEO of Lalitnomics, an investment consulting enterprise, he also holds certification of master hypnotist from the California Institute of Hypnosis, a sought-after speaker at CA and many circles, social forums like EIRC and Rotary Club of Calcutta. Mr. Lalit delivers transformative seminars. We welcome you, sir. Over to you. Okay, thank you, Rasi, for such a wonderful introduction. Let me ensure whether I'm audible or not. I'm Yes, audible? you're audible. Okay. There is some issue with my earphone, so I will be speaking directly. So I hope you all will bear with me. I would like to share my PPT.
Are you able to see my PPT? Yes, sir, the PPT is visible. Okay. So let me start. I will start in Hindi. So I think all understand Hindi. Yes, sir, Okay, that's please, not a please. problem. Yes, yes. Okay. So my first question to all the participants, what is more important, time or money? टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मनी? या वैल्यू वाइज पूछ लेते हैं, चलो। टाइम का ज्यादा वैल्यू है या मनी का ज्यादा वैल्यू है? कुछ लोग चाहे तो अनम्यूट करके आंसर कर सकते हैं, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाएंगे क्योंकि 1 आवर का ये सेमिनार। Sir, actually, they do not have the permission to speak. ओके So, ओके, ठीक है। they can yeah, type it in the chat box. ओके, चलो फिर चैट बॉक्स में देखते हैं। चैट बॉक्स में देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई वैल्यू तो ज्यादा टाइम की ही है, क्योंकि टाइम जो एक बार वेस्ट हो गया तो वो वापस नहीं आ सकती। जो मोमेंट अभी चला गया वो वापस किसी भी तरह से हमारे पास नहीं आ सकती। लेकिन पैसे तो वेस्ट हो गए तो वापस आ सकते हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं। उसके बाद भी हम लोग सब पैसों के पीछे ही भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में है कि पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कैसे? क्योंकि लगता है कि पैसे हमारे पास होंगे तो हम टाइम बाय कर सकते हैं। क्योंकि यदि 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए यदि हमें 9 to 5 जॉब करना पड़ रहा है, दिन भर अपना टाइम देना पड़ रहा है, वो 1 लाख रुपया यदि हम मेरे पास बिना 9 to 5 मेहनत किए आ जाए, तो वो 9 to 5 का जो टाइम है 8 आवर्स का, वो तो मैंने बाय कर लिया ना, 8 आवर्स पर डे का। तो इसलिए पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पैसों से हम टाइम ही बाय करते हैं। तो इसलिए ज्यादातर लोग पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम, पहले उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम? मेघा ने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हमें काम न करना पड़े, काम तो हम करेंगे ही, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि कर्म तो हमें करना ही है। क्योंकि ऐसा कोई भी मोमेंट नहीं होता कि हम बिना कर्म के रह पाते हैं, तो काम तो हमें करना ही है। बस फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाए तो हम पैसों के लिए काम नहीं करते, हम अपनी इच्छा से काम करते हैं, हम अपने फ्रीडम के लिए काम करते हैं, हम अपने आनंद के लिए काम करते हैं, पैसों के लिए काम नहीं करते। पैसे फिर भी आते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं आएंगे, लेकिन जब पैसों के लिए हमें काम न करना पड़े तो हम कह सकते हैं कि आई हैव अचीव्ड माई फाइनेंशियल फ्रीडम। अब सवाल ये उठता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए किस लिए? वाई? फाइनेंशियल फ्रीडम हम सभी अचीव करना चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हमें चाहिए क्यों? तो हितोपदेश में एक काफी अच्छा संस्कृत का श्लोक है, चलो मैं पढ़ ही लेता हूं उसे। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानः। मीनिंग भी दी हुई है पीपीटी में नीचे, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि जितने भी जीव हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, सब में एक चीज कॉमन है, आहार निद्रा भय मैथुन। क्योंकि भोजन सबको चाहिए, नींद सबको चाहिए, चाहे वो जानवर हो या इंसान। भय सबको लगता है, क्योंकि डर न लगे तो जानवर घोंसला नहीं बनाएंगे, इंसान घर नहीं बनाएंगे, ऑफिस नहीं बनाएंगे। तो आहार निद्रा भय मैथुनम और रिप्रोडक्शन इंसान भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। तो फिर जानवर और इंसान में अंतर क्या है? क्या कोई डिफरेंस है जानवर और इंसान में? लोग कहते हैं कि भाई इंसानों के पास थोड़ी ज्यादा बुद्धि होती है। बुद्धि तो जानवरों के पास भी होती है लेकिन लिमिटेड होती है, इंसानों के पास थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन थोड़ी ज्यादा बुद्धि है, तो क्या हम भी इन्हीं चारों में लगे रहे? तो फिर जानवर और इंसान में अंतर क्या रह जाएगा? भाई आहार जो है, फूड तो जानवर भी जमा कर ही लेते हैं, वो फाइनेंशियल फ्रीडम की नहीं सोचते। जहां से भी फूड मिलता है वो अपना खा लेते हैं। नींद आराम से कर लेते हैं, डर लगता है अपना घोंसला बना लेते हैं, और रिप्रोडक्शन उनका जो सिस्टम है उससे वो कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर इंसान भी यही चीज कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है, फूड थोड़ा सा ज्यादा कुक करके अच्छे से प्लेट में अच्छी कटलेरी और ये सारा कुछ यूज करके वो फूड करते हैं।
नींद के लिए अच्छा सा बेड ले लेते हैं, थोड़ा प्रॉपर तरीके से एसी वैसी चला के अच्छे से सोते हैं। और डर तो लगता है कि भाई अपने आप को सेफ रखना है हमें, उसके लिए अच्छा अच्छा घर बनाते हैं, आलीशान बंगलो बनाते हैं, घर बनाते हैं, जितनी जिसकी कैपेसिटी उस हिसाब से बना लेते हैं। और उसके बाद रिप्रोडक्शन, उनका जो एक सिस्टम है उससे वो करते हैं, मतलब शादी करते हैं, और इस तरह से वो एक सामाजिक बंधन में वो बनते हैं। और यदि जानवर जो काम कर रहे कर तो वो भी वही काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों में ऐसी क्या चीज है जो उनसे वो अलग करती है? तो हितोपदेश कहती है कि धर्म धर्म जो है वो इन जानवरों को इंसान से अलग करती है। अब धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ये नहीं है। धर्म का अर्थ है जो करने योग्य कार्य हो, जो सही काम हो वो करते हैं वो, तो उसे धर्म कहते हैं। धर्म का अर्थ स्वभाव भी होता है, लेकिन यहां धर्म का अर्थ है जो सही काम करना चाहिए वो यदि हम करते हैं तो वो है धर्म। तो हमारे शास्त्र कहते हैं, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में कहते हैं कि इंसानों को ये चार काम जो है वो जानवरों से अलग बनाते हैं, और वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म तो जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, धर्म का अर्थ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, धर्म का अर्थ रिलीजन भी नहीं है। धर्म का अर्थ है जो सही काम है, जो इंसानों के करने योग्य काम है वो काम करना, जो एक बेसिक सेंस हम सब में होता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो वही धर्म है। अर्थ क्या है? अर्थ का ना, यदि मैं पूछूं तो लोग कहेंगे भाई रुपये पैसे, लेकिन अर्थ का अर्थ थोड़ा वाइड है, यानी संसाधन। रुपये पैसे तो एक माध्यम है जिससे हम संसाधन इकट्ठा करते हैं, तो वो अर्थ। तो मानव जीवन का ये चार उद्देश्य है, आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा: धर्म, अर्थ और काम। काम में जितने भी हमारी इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो काम की कैटेगरी में आता है। और उसके बाद मोक्ष। इन सब से मुक्ति मिल जाए तो फिर हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। अब कहें कि भाई मोक्ष ही जब प्राप्त करना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम किस लिए चाहिए? अब कोई एक भिखारी कहे कि भाई पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। भाई पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्यों वो भिक्षा मांग रहा है? लेकिन यदि मुकेश अंबानी कहें कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है तो बात समझ में आती है। तो कोई भी चीज छोड़ने के लिए उसका होना हमारे पास जरूरी है। त्याग तो हम वही चीज कर सकते हैं ना जो हमारे पास हो। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम आवश्यक है। और हमारे शास्त्रों में यह कहा भी गया है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये मनुष्य जीवन का मेन उद्देश्य है। और इन चारों को करने का एक टाइम है। 4 स्टेजेज ऑफ लाइफ है एज पर इंडियन कल्चर। वो क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है, जब तक हम विद्या अध्ययन करें, कुछ सीखें, स्किल्स डेवलप करें, उस समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो वो सिर्फ धर्म पालन करने का स्टेज होता है। सिर्फ धर्म का पालन करें और फोकस करें पूरी तरह से स्किल्स अचीव करने पर, स्टडी पर, सीखने पर। वहां और किसी भी चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में यही करना होता है। और उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है, क्योंकि हमने काफी कुछ सीख लिया है। तो अब हमारा उद्देश्य हो जाता है कि हम गृहस्थी बनाएं, विवाह करें, अर्थ उपार्जन करें, और अपनी जो भी इच्छाएं हैं, सपने हैं, वो पूरे करें। ये है गृहस्थ आश्रम। और गृहस्थ आश्रम का एक स्टेज पूरा होने के बाद सन्यास की स्थिति आ जाती है, जब हम वो सारा कुछ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर आता है वानप्रस्थ। उसके बाद जो है हम हर चीज धीरे धीरे छोड़कर वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। अब कहते हैं ये तो पुरानी बातें हो गई, हजारों साल पहले की बातें, आज ये किस तरह से एप्लीकेबल है? तो आज भी ये उतनी ही एप्लीकेबल है। जिस तरह से यदि कोई स्टूडेंट सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करे, सिर्फ सीखने पर फोकस करे, तो वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन पाएगा। और उसके बाद जब गृहस्थ आश्रम स्टार्ट होता है, वो अच्छे से धर्म के साथ अर्थ और काम पर भी ध्यान दे। अर्थ यानी कि धन का उपार्जन उपार्जन करे धर्म के साथ, और काम यानी कि अपनी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन धर्म हमेशा होना चाहिए। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अर्थ और काम पर ही ध्यान दे रहे हैं, धर्म को वो भूल जा रहे हैं। और मोक्ष तो जैसे प्राप्त करना ही नहीं, जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि अल्टीमेट उद्देश्य जो है वो है हमारा मोक्ष प्राप्त करना। तो आज के स्टेट में, स्टूडेंट लाइफ में जो है, पूरी तरह से हमें सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है। और गृहस्थ आश्रम में धर्म के साथ अर्थ और काम को पूरा करना है। और उसके बाद सन्यास। अब सन्यास के टाइम में पहले तो लोग क्या करते थे कि वो पूरा घर बार छोड़कर चले जाते थे, किसी गुरु
की शरण में या कहीं ना कहीं सब कुछ छोड़ के चले जाते थे। लेकिन आज के दिन ये पॉसिबल नहीं है। तो आज के दिन का संन्यास क्या है? आज के दिन का संन्यास है कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं या प्रोफेशन में हैं, जहां पे भी हैं, वो आप अगली जनरेशन को ट्रांसफर करें। आप उसे धीरे धीरे अपने आप को फ्री करते रहे, अपनी वसीयत बना दें, और जो भी कुछ है एक्टिवली जो है अपनी प्रीवियस जनरेशन को आप वो सारा कुछ ट्रांसफर करें। और इस तरह से उन्हें जॉब भी मिल पाएगी, उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो पाएगा, और हम उससे धीरे धीरे फ्री हो पाएंगे। और उसके बाद आता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का जो स्टेज है, उसमें कहते हैं कि आपको अपने घर परिवार फैमिली सबसे डिटैच होना है, क्योंकि जब तक आप डिटैच नहीं होंगे तब तक आप वानप्रस्थ में नहीं जा सकते। और जब तक वानप्रस्थ में नहीं जाए, पहले तो लोग जंगलों में चले जाते थे, लेकिन अब जंगल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको डिटैच होना है धीरे धीरे और अध्यात्म की ओर जाना है। तो ये सारे जो स्टेज है, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलयुग को अर्थ युग कहा गया है। और जब तक अर्थ प्राप्त नहीं कर सकते हम करेंगे, हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, उसे हम त्याग नहीं सकते। इसलिए फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज्यादा आवश्यक है, और तभी हम अपने लाइफ की ये चारों स्टेज पूरे कर पाएंगे। अब जब हम समझ चुके हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमें क्यों चाहिए, तो चलिए कुछ बेसिक्स हम समझते हैं। हैव यू डन योर बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग? क्या आपने अपनी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली है? ज्यादातर लोगों ने की होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी की होगी। तो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कहां से होती है? चलिए देखते हैं। टर्म इंश्योरेंस। सबसे पहले हम एक इंश्योरेंस लेंगे, टर्म इंश्योरेंस। जबकि इंडिया में इंडोमेंट इंश्योरेंस ज्यादा पॉपुलर है कि भाई हमने कुछ पैसा दिया है तो जीते जी वो हमें रिटर्न होना चाहिए यदि हम जीवित रहे तो। लेकिन वो फिर इंश्योरेंस नहीं है, वो एक तरह का सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इंश्योरेंस तो प्योर इंश्योरेंस ही होना चाहिए, जो कि टर्म इंश्योरेंस है। और आज के सोशल मीडिया के जमाने में सभी जानते हैं कि भाई टर्म इंश्योरेंस होता क्या है। फिर भी चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। टर्म इंश्योरेंस यानी कि एक सर्टेन अमाउंट, कहने का मतलब यह है कि हमारी जितनी एनुअल अर्निंग है उसका कम से कम 20 टाइम्स का इंश्योरेंस कवर हमारे पास होना चाहिए। इवन 25 टाइम्स बोले तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 25 टाइम्स होगा तो 4% उसे यदि मिलता रहे हमारी हमारे पीछे हमारी फैमिली को, तो उनकी लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो उसी तरह की लाइफ स्टाइल लीड कर पाएंगे हमारे एब्सेंस में भी। इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे जीते जी हमें कुछ भी वापस नहीं मिलता, लेकिन हमारे बाद हमारी फैमिली को एक बहुत बड़ा सपोर्ट जरूर मिलता है। तो जितना अर्ली ले ले उतना कम प्रीमियम में हो जाएगा, इसलिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के खर्चे आजकल काफी बढ़ गए, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। कई लोग जॉब में हैं और कंपनीज का हेल्थ इंश्योरेंस होता है कि भाई कंपनी हमें सिक्योर रखती है, लेकिन उसके बाद भी एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस रहना चाहिए, क्योंकि यदि जॉब छूट भी जाए तो वो इंश्योरेंस आपको कवर करेगा। इसलिए आपका पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी जरूर होना चाहिए। और हमारे इंस्टीट्यूट ने तो मेंबर्स के लिए स्पेसिफिक प्लान लॉन्च किया हुआ है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस के साथ है शायद, नेशनल इंश्योरेंस या न्यू इंडिया इंश्योरेंस के साथ। तो जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें मैं जरूर कहूंगा कि वो जरूर इंस्टीट्यूट के का जो ये स्पेसिफिक एडवांटेज है इसका जरूर फायदा लें। अब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इसे जनरली लोग अवॉइड करते हैं। भाई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हेल्थ इंश्योरेंस हमारा कवर करता है एक्सीडेंट के केस में भी, लेकिन यहाँ एक बात हम लोग सब भूल जाते हैं। एक्सीडेंट में यदि हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हेल्थ इंश्योरेंस हमारा उसे कवर करता है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद यदि पार्शियल डिसेबिलिटी या परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो फिर न तो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा और न ही टर्म इंश्योरेंस। तो उस केस में हमें टर्म इंश्योरेंस के जैसा ही फायदा मिलता है परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में, और पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में भी हमारी इनकम जो रिड्यूस होती है वो इनकम वहां से हमारी कंपेंसेट हो जाती है। इसलिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटे से प्रीमियम में ये इंश्योरेंस हो जाती है। और उसके बाद फिर हम आते हैं कंटिंजेंसी फंड में। कंटिंजेंसी फंड हम सबके पास जरूर होना चाहिए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई हमारे पास कम से कम 6 महीने का कंटिंजेंसी फंड होना चाहिए। 6 महीने हमारे जितने खर्चे होंगे वो पैसे हमारे कंटिंजेंसी फंड में होने चाहिए। और वो कंटिंजेंसी फंड हम एफडी वगैरह में रख सकते हैं, बॉन्ड में रख सकते हैं, जिसे जब चाहे हम लिक्विडेट कर दें। तो 6 महीने तो एक स्टैंडर्ड बोला गया है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के प्रोफेशन में हैं, किस तरह के प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, उसके हिसाब से ये 6 महीने से लेके 2 साल 2.5 साल तक का कंटिंजेंसी फंड हो सकता है।
तो बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग जब तक आप नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। तो होप कि आप सब ये समझ पा रहे हैं कि ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। स्क्रीन मेरी, फ्रीज हो गई क्या सर? यस यस, माय स्क्रीन इज, पीपीटी इज नॉट स्लाइड, Oh. स्लाइड शो इज ब्लॉक्ड आई थिंक। जस्ट अ मिनट। आई एम जस्ट स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयर एंड शेयरिंग अगेन। No सॉरी problem, फॉर sir. इंटरप्शन। Okay, I'm continuing without screen sharing. Just let me try once again. Hope you are able to see my screen. Yes, sir, it's visible. Okay. So do you know about this ratio? What is 96 is to 4? It's a 96 is to 4। दुनिया में जितने भी लोग हैं, 96% लोगों के पास जो है वो दुनिया का 4% वेल्थ है, और 4% लोगों के पास 96% वो वेल्थ है। काफी डिस्पैरिटी है ना, क्योंकि दुनिया का 96% लोग जो है दुनिया के सिर्फ 4% लोगों के पास है। और ये क्यों है? क्या इसमें गवर्नमेंट का कोई दोष है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये 4% लोग जो है कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी 96% लोग नहीं जानते। तो ये 4% लोग क्या जानते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। माइंडसेट। ज्यादातर लोगों का माइंडसेट जो है वो एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि बस मैं इतना तक ही कर पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी अचीव कर सकते हैं लाइफ में, किसी भी लेवल तक वो जा सकते हैं। तो वो ग्रोथ माइंडसेट, तो जब तक ग्रोथ माइंडसेट नहीं होगा तब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। और इसमें हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है हमारे बिलीफ सिस्टम का भी होता है। जैसे कि एक एलिफेंट जो है, जब ग्रोन अप एलिफेंट होता है, माने एलिफेंट जब बेबी एलिफेंट होता है उसे काफी मोटी जंजीर या रस्सी से बांधा जाता है, क्योंकि वो अभी अभी इस दुनिया से आया है और वो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उस बंधन को छुड़ाने की, और इसलिए उसे मोटी जंजीर से बांधा जाता है। और इसी माइंडसेट के साथ वो धीरे धीरे बड़ा होता है, क्योंकि वो उस बंधन को छुड़ा तो पाता नहीं, तो उसे लगता है कि मैं ये बंधन कभी छुड़ा ही नहीं पाऊंगा। और बड़े होने के बाद फिर वो ट्राई करना ही छोड़ देता है। और यही हमारे साथ भी होता है। हमने कभी कुछ ट्राई किया था और हम अचीव नहीं कर पाए, तो फिर लगता है कि हमारी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है,
और हम कभी इस बंधन को छुड़ा ही नहीं सकते, हम कभी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ही नहीं सकते। इसलिए जब तक हम बिलीव नहीं करेंगे तब तक हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, इफ यू कैन बिलीव यू कैन फ्लाई, एंड इफ यू डोंट बिलीव यू कैन नेवर। क्योंकि जब आप बिलीव करेंगे तभी आप फ्लाई कर सकते हैं। यदि आप में विश्वास है कि आप कुछ अचीव कर सकते हैं तो आपके पास हजारों कारण हो जाते हैं उसके कि आप ये क्यों अचीव कर सकते हैं। और यदि आपके पास विश्वास है कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो भी आपके पास हजारों कारण होते हैं कि मैं ये क्यों नहीं कर सकता। तो बेटर है कि बिलीव करें कि आई कैन अचीव दिस। व्हाट इज द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ? लाइफ का बिगेस्ट रिस्क जो है वो है कोई भी रिस्क न लेना। क्योंकि जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम लाइफ में आगे कुछ अचीव नहीं कर सकते। लेकिन रिस्क लेना कैसा चाहिए? क्या अंधेरे में तीर मारना है? नहीं, हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क ले कि यदि ये रिस्क लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, अच्छा से अच्छा हुआ तो क्या हो सकता है, और बुरा से बुरा हुआ तो क्या हो सकता है। क्योंकि जब हम वर्स्ट के लिए भी तैयार होते हैं तो बेस्ट भी मिलने की संभावना काफी रहती है। अब ये देखते हैं कि डू यू हैव व्हाट इट टेक्स टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम? Are you a disciplined person? How much patience do you have? Can you think out of box? किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में ये तीन चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। अब जब फाइनेंशियल फ्रीडम की बात आई है तो सेविंग्स की बात भी आती ही है। व्हाट इज सेविंग्स? सेविंग्स क्या है? बचपन से ही हम लोग पढ़ते हैं भाई, इनकम के बाद इनकम जो आती है उसमें से एक्सपेंस यदि को लेस करो तो जो बच जाता है वही सेविंग्स है। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग अचीव करते हैं उनके लिए सेविंग्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। तो कौन सा इक्वेशन बेटर है? सेविंग्स इक्वल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो लोग अचीव करते हैं उनके लिए दूसरा वाला इक्वेशन ज्यादा सूटेबल होता है। कहते हैं भाई जो भी इनकम आई उसका एक पार्ट में इन्वेस्ट कर दूंगा, उसके बाद जो भी बचेगा उसी से मैं अपना खर्च चलाऊंगा। और इस तरह का जो माइंडसेट होता है और अपने इक्वेशन को जो लोग इस तरह से रखते हैं वो लोग जल्दी ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेते हैं। तो अब इन्वेस्टिंग के बाद जब चली है तो इन्वेस्टिंग के रूल्स भी समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना हो तो कितना परसेंट ऑफ इनकम टू बी इन्वेस्टेड रेगुलरली, कितना हमें अपनी इनकम का कितना परसेंट हमें रेगुलर इन्वेस्ट करना चाहिए। जब से आप अर्न करें तभी से यदि आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें तो कम से कम यदि आप 10% भी करते हैं तो आप कुछ सालों में 10 साल 15 साल 20 साल में आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। तो कम से कम 10% होना ही चाहिए, और जितना ज्यादा कर सके उतना बेटर है। एसेट एलोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई, किस एसेट क्लास में अचीव करें। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें कि आपको किस एसेट क्लास में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लास। गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा जरूरी है भाई। आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, मैरिज के लिए कर रहे हैं, कार खरीदने के लिए कर रहे हैं, घर खरीदने के लिए कर रहे हैं, या किसी वैकेशन के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका इन्वेस्टमेंट गोल ओरिएंटेड होता है तो जल्दी से आप उसे ब्रेक नहीं करते और एक डिसिप्लिन्ड तरीके से आप उसे उसमें आप इन्वेस्ट करते रहते हैं। अब रिटायरमेंट कॉर्पस तो हम लोग सबको बनाना चाहिए। तो कितना होना चाहिए हमारा रिटायरमेंट कॉर्पस? कहते हैं कि भाई जितने भी आपके खर्चे हैं, एनुअल एक्सपेंडिचर जितने भी हैं, उसका 25 टाइम्स आपका रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए। और उसी हिसाब से अपने रिटायरमेंट फंड की प्लानिंग होनी चाहिए। क्योंकि यदि उतना करेंगे आप तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए आप उससे रेगुलर पैसे विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आप रिटायरमेंट डिसाइड करते हैं अपनी। तो
जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं भाई, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स क्या इन्वेस्टमेंट करने के। फिक्स्ड डिपॉजिट, ये काफी पॉपुलर रहा है पहले। यदि आज से मैं 15-20 साल 25 साल पहले की बात करूं तो फिक्स्ड डिपॉजिट काफी पॉपुलर इन्वेस्टमेंट माना जाता था। लेकिन अब इंटरेस्ट रेट इतनी कम हो गई है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन अपने इमरजेंसी फंड आप फिक्स्ड डिपॉजिट में जरूर पार्क करके रख सकते हैं। बॉन्ड्स भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वली सिक्योर्ड है। पीपीएफ हम लोग सबको करना चाहिए। पहले तो हमें टैक्स एडवांटेज भी मिलती थी, अभी भी टैक्स एडवांटेज है, लेकिन वो ओल्ड रिजिम में ही है सिर्फ। लेकिन फिर भी ये एक टैक्स फ्री इनकम होती है और इसके साथ एक इम्यूनिटी अटैच्ड होती है, क्योंकि कोई भी एजेंसी पीपीएफ को अटैच नहीं कर सकती किसी भी तरह के केस में। इसलिए पीपीएफ जो है आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बहुत ही सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इक्विटी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है ये काफी एक्साइटिंग है, काफी थ्रिल वाला है। जो कि शॉर्ट टर्म में तो काफी वॉलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा रिटर्न आपको कोई दे सकता है। हिस्टोरिकली देखा भी गया है कि इक्विटी ने ही सबसे ज्यादा रिटर्न दिया गया है। लेकिन यहाँ आपको काफी ज्यादा स्किल्स की जरूरत होती है, स्किल्स और रिसर्च की जरूरत होती है, और तभी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। काफी एक मिसकंसेप्शन है कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट तो ऑलरेडी एक्सपर्ट होते हैं, वो तो इक्विटी का अच्छे से चूज कर ही सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट होने से आप अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। इन्वेस्टमेंट के लिए आपको अपनी स्किल एक अलग तरीके से डेवलप करनी होगी। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड भी इक्विटी का ही इन्वेस्टमेंट है। इक्विटी डेट सारा कुछ होता है, लेकिन मेनली म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड ही पॉपुलर है। और इसमें जो है इक्विटी शेयर्स को फाइनेंशियल मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो मैनेज करते हैं, और इसके लिए वो एक छोटी सी फी चार्ज करते हैं जो डायरेक्टली हमें नहीं देनी होती, हमारे इन्वेस्टमेंट में से ही वो डिडक्ट हो जाता है। और इस तरह से, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारे फंड मैनेजर जब उसे चर्न करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो उस पर हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और नहीं फंड हाउस को देना होता है। क्योंकि जब भी हम रिडीम करेंगे और उस समय यदि हमारे पास कोई भी प्रॉफिट जनरेट होती है तभी हमें टैक्स देना पड़ता है। लैंड, लैंड को भी इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली माना गया इन्वेस्टमेंट पर, तो इक्विटी के साथ ही, इक्विटी या इक्विटी से ज्यादा रिटर्न भी लैंड दे सकता है, लेकिन इसमें आपको काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना होता है और इसे प्रोटेक्ट करना भी एक सरदर्द होता है काफी लोगों के लिए। तो लैंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। गोल्ड और सिल्वर भी हम, मुझे तो लगता है ये डेट की तरह का ही है। पिछले 5 साल में जरूर इसने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर भी आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% के आसपास हो सकता है। और क्रिप्टो, क्रिप्टो भी आजकल यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर हो चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि एक छोटी सी अमाउंट, क्योंकि क्रिप्टो हमारे देश में रेगुलेटेड नहीं है, तो एक छोटा सा अमाउंट जो आप लॉस करने, पूरी तरह से लूज करने को तैयार है, वो आप इन्वेस्ट करके जरूर छोड़ सकते हैं। तो ये सारे जो है इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। एसआईपी काफी पॉपुलर है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने या हर वीकली छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये काफी पॉपुलर है। लमसम उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपके पास यदि करोड़ों रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर एसआईपी करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लमसम आपको हमेशा अच्छे अच्छे रिटर्न जनरेट करके देता है। लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो कम से कम 6-7 साल 8 साल से ज्यादा का होना चाहिए। लमसम में आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप एक छोटे पीरियड की एसआईपी कर सकते हैं। वो 12 महीने या 15 महीने या 18 महीने की एसआईपी में आप लमसम को डिवाइड करके उस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नॉर्मल एसआईपी तो आप इनकम का एक सर्टेन परसेंटेज जो आप इन्वेस्ट करते हैं उस तरह से करते हैं, तो आप एक अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठा डाइवर्सिफिकेशन, जिसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि भाई अलग अलग एसेट क्लास में आपको इन्वेस्ट करना है, और चाहे तो आप डाइवर्सिफाई अक्रॉस मार्केट्स। इंडिया के बाहर के मार्केट्स में भी आप कुछ पैसे अपने इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10-20%। यूएस का मार्केट हो सकता है, चाइना का हो सकता है, या बाहर के 2-3 मार्केट हैं जहां आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट इंडाइसेज के बारे में आप जरूर जानते होंगे। यदि आप काफी ज्यादा सिक्योर्ड रहना चाहते हैं और काफी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो ये बेस्ट तरीका हो सकता है इन्वेस्टमेंट करने का। आजकल इन सारे इंडेक्स की ईटीएफ भी अवेलेबल है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छा
रिटर्न बनाकर आपको दे सकता है। ऑलमोस्ट एफडी का डबल रिटर्न तो आप इससे कमा ही सकते हैं, काफी पैसिव तरीके से। यहाँ वॉलेटिलिटी का ज्यादा रिस्क नहीं होता, लेकिन हमेशा ये सारे ही जो है इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, इसलिए आपको हमेशा ही लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह से या खुद का अच्छा रिसर्च करके ही आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें। एक बार मार्केट कैप भी हम लोग समझ लेते हैं शॉर्ट में। लार्ज कैप फंड, जिस कंपनी का मार्केट फंड यानी कि उनके जितने भी इक्विटी शेयर्स हैं उसको यदि मार्केट प्राइस से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट कैप आ जाता है 20,000 करोड़ से ज़्यादा की जो भी के मार्केट कैप वाली जो भी कंपनी उसे लार्ज कैप कहते हैं। 5,000 से 20,000 करोड़ की मार्केट कैप की जो कंपनी उसे हम लोग मिड कैप कहते हैं या मीडियम कैप कहते हैं। और 5,000 करोड़ तक की कंपनी को स्मॉल कैप कहते हैं। और एक और भी कैटेगरी है आजकल 1,000 करोड़ से नीचे की कंपनी जो माइक्रो कैप कहते हैं। सबसे ज़्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप का कहला माना जाता है, लेकिन इसमें ये थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इसमें रिटर्न उतने ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं? आप कोन बनाते हैं या फिर पिरामिड? ज़्यादातर लोग कोन ही बनाते हैं। जब मार्केट बढ़ना शुरू होता है तो वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो वो सेल आउट करना शुरू करते हैं। ट्रेडर्स के लिए तो ये स्ट्रैटेजी ठीक है, क्योंकि उन्हें ट्रेडिंग करना है, बार बार पैसे जनरेट। लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये स्ट्रैटेजी सही नहीं। इन्वेस्टर्स को तो जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आए तो उन्हें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट ऊपर जाए तो उन्हें अपना इन्वेस्टमेंट जो है कम करना चाहिए, एसेट एलोकेशन चेंज करना चाहिए। क्या आपने डरवास बॉक्स थ्योरी के बारे में सुना है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे मैं शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूँ। डरवास जो थे वो एक डांसर थे, और इन्होंने अपनी एक थ्योरी इजाद की स्टॉक मार्केट को ऑब्जर्व करके। इन्होंने देखा कि जो शेयर्स बढ़ते हैं वही बढ़ते जाते हैं, और जो घटते हैं वो गिरते ही चले जाते हैं। तो उन्होंने हर वीक के स्टॉक प्राइस को नोट करना शुरू किया, एक बॉक्स बनाया कि भाई लोएस्ट प्राइस क्या है और हाईएस्ट क्या है। और जब भी पिछले वीक के हाईएस्ट प्राइस को शेयर क्रॉस करते थे तब वो पैसे उसमें लगाते थे, क्योंकि उसमें बढ़ने की ज़्यादा चांसेज होती थी। तो डरवास की अपनी एक थ्योरी है, और इनकी एक बुक भी है, हाउ आई मेड माई फर्स्ट 10 मिलियन या ऐसे कुछ। उस बुक को पढ़ के आप जो है उसकी इंसाइट ले सकते हैं। मैं उनकी इनकी थ्योरी में काफ़ी बिलीव करता हूँ, और पिछले 6 साल से मैं इनकी इस थ्योरी के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट भी करता रहता हूँ। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट में लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। कहते हैं कि किसी भी इन्वेस्टर को, पैसिव इन्वेस्टर को, जो लोग पूरी तरह से मार्केट में रिसर्च नहीं कर सकते, उन्हें बिना किसी स्ट्रैटेजी के इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए। या तो आप फंड मैनेजर को दे दें अपना इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट करें, या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और उसे आप कंसिस्टेंट तरीके से उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में काम कर सकती है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का भी एक बेसिक रिसर्च करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि भाई जिस कंपनी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो क्या बेसिक नीड है लोगों की? क्या वो कंपनी मार्केट लीडर है या मार्केट लीडर बनने की पोटेंशियल है उसमें? वो कंपनी जिस प्रोडक्ट में भी डील कर रही है वो क्या हमेशा से डिमांड में रहने वाली है? उसकी जो प्राइसिंग है वो क्या मासेज के लिए अफोर्डेबल है? क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन आ सकता है उस कंपनी में? यदि लगता है कि टेक्नोलॉजी का डिसरप्शन आ सकता है तो फिर आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा कम से कम ये 5 चीजें आप बेसिकली देखें, और उसके बाद फिर वैल्यूएशन वगैरह जो है वो आप जरूर चेक करें। तो इसके साथ ही शॉर्ट में फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी जो है हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। ये सेशन तो समाप्त होता है आज, लेकिन आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी ये जर्नी स्टार्ट नहीं की है, तो मैं आशा करता हूँ कि वो लोग जल्दी ही अपनी ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। इसके साथ ही मैं अपना ये सेशन समाप्त करूंगा, और थैंक्स बोलना चाहूँगा ईआरसी चेयरमैन सीए विष्णु तुलसियान और पूरी ईआरसी टीम को,
और जो हमारे स्क्रीन पर दिख रही हैं, मेघा जी, राशि सोनथालिया जी, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू। और ऑनलाइन सेशन मैं ज़्यादातर करता नहीं हूँ, मुझे लाइव सेशन की ज़्यादा आदत है, तो हो सकता है कि एनर्जी थोड़ी कम दिखे हो आपको। सो Thank थैंक यू you, फॉर sir, पार्टिसिपेट। for joining. We'll just host a few question answer session if anybody यस, has. यस, यस। So if anybody has any questions, they can ask in the chat box. And there's one person who has his hand raised, but they have not asked any question yet. क्वेश्चन तो लाइव आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर करना जरूरी नहीं मेरे हिसाब से। हाँ, क्वेश्चन आप लाइव आंसर कर सकते हैं, उनको क्वेश्चन मुझे मैं लगता है बोलूँगी। अनम्यूट करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं लाइव में भी, यदि कोई क्वेश्चन हो तो। उनको वो फैसिलिटी नहीं है कि वो अनम्यूट कर सके, सर। अच्छा, 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 ओके। चलिए, आप लोग ही कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाएगा यदि करना चाहिए। तो इफ यू कुड सजेस्ट अ फ्यू म्यूचुअल फंड्स जिसमें स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया जा सकता है। देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। म्यूचुअल फंड में यदि आप पूरी तरह से सिक्योर्ड रहना चाहते हैं, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो इंडेक्स फंड्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि इंडेक्स अपने आप ही रीबैलेंस होते रहते हैं। क्योंकि आप यदि देखें तो निफ्टी 1000 से स्टार्ट हुआ था, आज 26,000 के आसपास है, 26 टाइम्स हुआ है, जो कि मुझे लगता है शायद 30 साल 35 साल हुए होंगे। क्योंकि वो रीबैलेंसिंग अपने आप ही होता रहता है। यदि आपको लगता है कि नहीं, निफ्टी में जितने स्टॉक्स है उस डायरेक्ट में स्टॉक्स में कर दूं इन्वेस्टमेंट, तो बेटर रहेगा। काफ़ी लोग ऐसा भी करते हैं, लेकिन वहाँ फिर रीबैलेंसिंग आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर 6 महीने पर थोड़ी सी चर्निंग होती है, 2-3 स्टॉक नए आते हैं, 2-3 जाते हैं। लेकिन आपने इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया, और निफ्टी 50 के जो इंडेक्स फंड भी हैं और ईटीएफ भी हैं, यदि उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप लंबे समय में, लेकिन जब भी आप इन्वेस्ट करें, एक रिसर्च है जो कहती है कि भाई यदि 6 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया तो लॉस होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब से स्टार्ट हुआ है सेंसेक्स या निफ्टी, 6 साल के किसी भी पीरियड में लॉस नहीं हुआ है। 6 साल में हमेशा फायदा ही फायदा हुआ है। तो ये है पैसिव इन्वेस्टिंग। और यदि आप एक्टिव म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस देख के, पास्ट परफॉर्मेंस हालांकि रिफ्लेक्ट नहीं करती हमेशा, लेकिन मुझे लगता है यदि पास्ट परफॉर्मेंस भी देखना हो आपको, तो कम से कम 10 साल का परफॉर्मेंस देखें। पिछले 10 साल में किस तरह से परफॉर्म किया फंड, उसके बेसिस पर आप चाहें तो एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट मार्केट में करना चाहें तो आपके पास वैसे स्किल होनी चाहिए, और कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजी ऐसी होती है जिससे बहुत अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो मैं शायद एलिजिबल नहीं हूँ वो सारा कुछ यहाँ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी नहीं हूँ। लेकिन आप अपना रिसर्च करके ये जरूर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मुझे लगता है जैसे यदि आप 5 साल से ज़्यादा पीरियड के लिए इन्वेस्ट करें, तो आपकी एक्सपेक्टेशन 12 to 15% की CAGR होनी चाहिए, जो कि डबल है, आपके एफडी से डबल है। FD से डबल है। और उससे ज्यादा यदि रिटर्न आप बना बनाना चाहें, तो फिर आप डायरेक्ट स्टॉक में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, तो आप उससे ज्यादा रिटर्न भी बना सकते हैं। सर एडिंग लाइन टू दिस, अगर आप अलाउ करें, हाँ, हाँ। तो जितना मैंने अपने लास्ट 10-13 ईयर्स में जो मैंने रिसर्च किया, मैंने ये देखा कि व्हेन वी आर इन्वेस्टेड इन अ फंड, बी इट म्यूचुअल फंड, बी इट स्टॉक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक्स बिकॉज स्टॉक्स तो एक्सेसिव वॉलेटाइल हो जाते हैं, हाँ, हाँ। तो फंड में भी हमें रीशफल करना चाहिए। ऑल्दो एक 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 ओनस बना हुआ है कि स्टे इन्वेस्टेड इन अ फंड एंड ऑल, बट पर्सनली मैंने देखा कि, और मैं आई गाइड माय ऑडियंस एंड माय मेंबर्स कि उस फंड में आप री इन्वेस्ट करो, रीशफल करो। मैंने वंस यू अचीव्ड अ 20% और 25%,
उसको निकाल के, मे बी द प्रॉफिट पोर्शन को निकाल के वी शुड रीशफल, वी शुड इन्वेस्ट इन अदर फंड विच इज नहीं। नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हो, लेकिन उसकी भी आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रॉपर प्री करेक्ट। प्री डिफाइंड आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी आपको होनी कब क्या चाहिए, करना है, और वो आपको रिलीजियसली करना है। करना है, करेक्ट। क्योंकि ये रैंडमली आप कभी भी कुछ करेंगे तो उससे पैसा नहीं बनेगा। तो नहीं यदि, आएगा। हाँ, यदि वो स्ट्रेटजी आपके पास है तो आपको बिल्कुल करना चाहिए। और एक जो मैंने स्पेशल एड्रेस में एक टॉपिक, जो एक एक छोटा सा जो की एलिमेंट्स जो मैंने मिस कर दिया, जो मैं अपनी लाइफ में बहुत इनकलकेट करती हूँ, मैं इवन अपने सीनियर्स जूनियर्स सबसे डिस्कस करती हूँ, ऑफिस में भी करती हूँ, बजटिंग। जो आई गेस आज अभी हम यंग जनरेशन्स तो, मैंने अपने बड़ों से सीखा ये चीज, मैंने अपने सीनियर्स से बहुत सीखा बजटिंग, कि एक हम्म। बजट बनाना या नोट डाउन करना, या एक बनाना कि व्हाट इज द लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस वी आर डूइंग, व्हाट इज आवर स्ट्रैटेजी एंड व्हाट वी आर अप टू। तो ये बजट वाला चीज जो है, वो हर एक इंसान को आई गेस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह एक स्टेप अहेड ले जाता है। व्हाई आई टेल यू, जब आप एक दिन आप ऐसे, फॉर एग्जाम, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी इस चीज को। अगर जब हम कहीं गए ऐसे ही, और हम एक्सपेंड कर रहे हैं, और आपके हम्म। पॉकेट में कुछ हिसाब नहीं है कि आप क्या एक्सपेंड कर रहे हो, तो हम्म। क्या होता है ना, वो एक्सपेंड हो जाता है। हम्म। हैविंग सेड दैट, अगर आपके पास एक पर्सन भी है, वो एक एक अमाउंट दो, कोई लिमिट नहीं है हमारे पास कि आप कुछ भी एक्सपेंड करो, लेकिन हम्म। आप अगर एक अमाउंट लेके चलते हो और रात को वापस आप जब होटल आके एक अपना बजट लिखते हो, आई नो इट हम्म। इट फाउंड वेरी क्लिशी, बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, बट व्हेन वी राइट, बिकॉज मे बी आज अमाउंट छोटा है, कल जब आप ये देखोगे आपके बिजनेस में, आपके काम में, आपको बहुत काम आएगा वो देख के कि आपका क्या बजट बना। तो वहां आप देख सकते हो कि क्या एक्सपेंसेस है जो आप दूसरी जगह उसको यूज कर सकते थे, या तो बजट हमारे ईच एंड एवरी एजेड लोगों को हेल्प करता है। जो मैंने अपने लाइफ में देखा, मुझे बहुत हेल्प किया, मुझे उनको उन उन एक्सपेंसेस को या उन चीजों को जो यूजफुल नहीं है, उन उन जगह में से निकल के अच्छी जगहों में इन्वेस्ट करने में, या प्लान करने में, स्ट्रैटेजाइज करने में बहुत काम किया। तो आई थिंक बजटिंग बहुत जरूरी है। मैंने मेघा, अपनी आपने आपने ये बात शेयर की, इसके लिए मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इससे रिलेटेड आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आज से करीब 16-17 साल पहले की बात है। मैं 2002 का सीए पास आउट हूँ। और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर होते थे, तो जैसे एक माइंड में रहता था कि हाँ, मेरे ये खर्चे हैं। लेकिन करेक्ट। फिर लगता था पैसे जाते कहाँ हैं भाई, खर्चे तो मेरे इतने ही हैं। क्योंकि जब भी हम मेंटली कैलकुलेट करते हैं ना, तो कैलकुलेट नहीं कर पाते प्रॉपर कि खर्चे तो मेरे इतने ही हैं, पैसे गए कहाँ, जाते कहाँ हैं। तो 2009 में समहाउ मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ सेमिनार वगैरह अटेंड किए थे। तो मुझे ये समझ में आया कि भाई पैसों को इंपॉर्टेंस देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है यदि आपको पैसे बनाने हैं तो पैसों को इंपॉर्टेंस कैसे दें? पैसों की आरती करें, लक्ष्मी जी की आरती करें। लक्ष्मी जी की आरती तो करते हैं हम लोग, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पैसों को इंपॉर्टेंस दें कैसे? तो अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई पैसा पैर पर नहीं लगता, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। कहते ये सारा कुछ यदि आप कहेंगे तो फिर पैसा आपके पास कैसे आएगा? यदि मुझे कोई कहे भाई आप हाथ का मैल हैं, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगा उनके पास? 100%। तो चाहे वो चीजें लाइव हो या नॉन लाइव हो, इंपॉर्टेंस देना काफी जरूरी होती है। और बिल्कुल पैसों को इंपॉर्टेंस देने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप जो भी पैसे आप खर्च कर रहे हैं आप उसे लिखें। और जिस दिन ये नॉलेज मैंने जाना, उस दिन से मैंने डेली का अपना एक्सपेंडिचर लिखना शुरू किया, और आज तक मुझे में वो आदत है। अब चूंकि कैश एक्सपेंडिचर तो कम होते हैं, अब वॉलेट के थ्रू होते हैं, तो अब क्या, मैं वॉलेट में ट्रांसफर कर देता हूँ, ज़्यादातर एक्सपेंसेज उससे होते हैं। और वॉलेट का बैलेंस हर दिन, या तो इवनिंग में या दूसरे दिन सुबह, मैं नोट डाउन करता हूँ कि किस हेड में मेरे क्या खर्चे हुए। और इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, एक्सपेंडिचर का बजट बनाने में। और मैं तो कहना चाहूंगा कि सबको ये करना चाहिए। बिल्कुल सर। और आई आपने एग्री। कहा ना कि बड़ा अजीब सा लगे, अरे ये क्या कर रहे हो, छोटे छोटे आप राइट। खर्चे लिख हाँ रहे सर, हैं, लगता लेकिन ये है ऐसा नहीं है कि काफी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई शेयर्ड ना सर, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जब मैं, इवन मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल बोले क्या तुम लिख के बैठ जाती हो एवरी डे, इवन माई सिस्टर यूज टू टेल मी एवरी डे यू हैव अ हैबिट, बचपन से तुम्हारा ये आदत है कि तुम रोज लिखती हो। बट आज उसने, जब उसने भी इस चीज को इनकलकेट किया अपने लाइफ में, and उसने चेंजेस देखा,
तो वो छोटा सा चीज उसके बहुत लाइफ में काम आ रहा है, एंड शी अप्रिशिएट्स माई हैबिट. So I this is my personal, obviously it's personal choice for everybody, but it's my personal suggestion that each one of us can review that, be reviewing it, be doing it, planning it. और कहीं ना कहीं एक सोशल मीडिया से जो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम हाँ आज के दिन जो हम हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा इंस्टाग्राम पे ये एडवर्टीजमेंट देख देख के जो हम अननेसेसरी एक्सपेंसेस कर रहे हैं. आई नो मे बी दिस डायस इज नॉट द परफेक्ट एरिया वेयर आई शुड स्पीक ऑन दिस नहीं टॉपिक. ठीक आई है, थिंक आई फाइनेंशियल शुड फ्रीडम की स्पीक. बात हो रही तो से एग्जैक्टली, रिलेटेड सारी बातें फाइनेंशियल हो फ्रीडम की सकती जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली हमें अपना पैसा अच्छे से प्लान करना चाहिए. आई थिंक वी यंग जनरेशन, वी आर एक्सपेंडिंग लॉट ऑफ नॉनसेंस थिंग्स rather than expending on things जहां जो ज्यादा जरूरी है. तो मेरे ख्याल से हमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया से शॉपिंग करने में, एंड हमें वहां लिमिट रखना चाहिए. इस पर मैं एक ऐड करना चाहूंगा, एक हम्म, बात। जैसे आप लेविशली भी कर सकते हैं अपनी लाइफ, लेकिन एक बिल्कुल सही. मिनिमलिज्म का लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमलिज्म। क्या बिल्कुल. मिनिमलिज्म हमें अपनाना चाहिए। तो वहां क्या होता है, हमारा टाइम कम, बहुत कम वेस्ट होता है। अब जैसे सपोज मैं अपनी बात करूं, तो मैंने कुछ साल से करना शुरू किया है। मैंने 2 वीक्स के अपने किस दिन क्या कपड़ा पहनना है वो मैंने डिसाइड कर लिया, 2 वीक्स के। यानी कि 14 दिन है तो 14 शर्ट्स, ट्राउजर्स जितने भी मैं पहनूंगा 14 डेज, मैंने 14 डेज तक मेरे कपड़े वॉश नहीं भी हुए, आयरन नहीं भी हुए, तो मेरा काम चलेगा। तो अब क्या है कि 14 शर्ट्स ले लिया मैंने, साल में एक बार 14 शर्ट्स ले लिया, और 14 ट्राउजर्स सपोज ले लिया मैंने। और वीकेंड्स में क्या पहनना है उसके लिए 2-4 सेट, जो भी है मैक्सिमम, वो किसी का 7 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब क्या है, न्यू परचेज मैं जब भी करूंगा, तो मेरा जो पुराना स्टॉक है उसमें से मुझे एक रिटायर करना है, तभी करूंगा। तो वो आप कंट्रोल में रहते हैं। बिल्कुल. अब ये मैं नहीं कहता कि भाई आपको 2-3-4 सेट ही करने हैं, आपको जितने करने हैं, लेकिन एक लिमिट आप बना दो उसमें से, कि बस जब भी मैं नया कोई भी परचेज करूंगा तो तभी करूंगा जब मुझे लगता है कि उसमें से मुझे कुछ जो है हटाना है। और जब भी लो तो आप रिलीजियसली उसको हटाओ, तो आप जो जंक जो आप हम जमा करते रहते हैं अपने घर में, उससे भी फ्री होंगे। और हमारा टाइम भी काफी सेव होगा यदि हमने डेज बिल्कुल. डिसाइड कर लिया कि हमें किस दिन क्या पहनना है। Okay, sir, we have another question. Question. Sir, we यस have यस। a question in the chat box. Yes, sir. So the Uh, question is, can we take home loan instead of repayment of loan, invest in mutual fund, apply systematic withdrawal plan, and become net debt free? Can we take home loan and instead of repayment of loan, investment in MF, apply SWP and become net debt free? देखिए ये काफी अग्रेसिव प्लान हो जाएगा। होम लोन तो मुझे लगता है कि लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि होम लोन को मैं अपनी सैलरी से फाइनेंस करूं। होम लोन आप ले सकते हैं, आप उतने पैसे SWP ना करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डायरेक्ट लमसम इन्वेस्टमेंट करें, उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा आपको। एक प्लानिंग करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन इसमें कि एक अग्रेसिव प्लान है, इसमें एक और भी स्ट्रेटजी जो आप कर सकते हैं। आपने SWP लिखा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। इसमें एक है बकेट एंड वेल एंड बकेट प्लान, वेल एंड बकेट स्ट्रेटजी कहते हैं उसे। वो यदि आप अपनाएं तो मुझे लगता है वो नॉर्मल SWP जो करते हैं हम लोग बैलेंस्ड फंड में या हाइब्रिड फंड में डालने से, तो उससे वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। इसमें क्या करते हैं, सपोज 1 करोड़ का हमारे पास अमाउंट है, 1 करोड़ का लमसम अमाउंट है। 1 करोड़ का हमने होम लोन भी ले लिया, चलो ठीक है, ठीक है। तो होम लोन की EMI हमें रखनी चाहिए 50,000 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 हमारी होम लोन की EMI होगी। और 1 करोड़ को हमने इन्वेस्ट किया, 5 से डिवाइड कर दिया, 20-20 लाख की का 5 जो है हमने पोर्शन बना दिया। 20 लाख को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे FD में, इस तरह से कि हर महीने मुझे 50,000 मिलते रहे। कर सकते हैं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने की, वैसे वैसे ही FD हमने कर दी कि हर महीने मुझे 50,000 मिले, ठीक है। दूसरा 20 लाख जो है वो हम कर देंगे हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट, क्योंकि ये फर्स्ट 20 लाख से 50,000 हमें करीब करीब 40 मंथ से ज्यादा मिल जाएंगे। 40 मंथ तक में एक 30-40% प्लस हो जाएगा हमारा हाइब्रिड फंड, क्योंकि 3 साढ़े 3 साल का टाइम मिल गया ना।
उसके बाद वहां से हम शिफ्ट कर सकते हैं एफडी में, या वहां से हम एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर सकते हैं 50,000 रुपये Yes. महीने की। उसके बाद वाला जो 20 लाख है उसे हम फ्लैक्सी कम कैप फंड में लगा सकते हैं, क्योंकि फ्लैक्सी कैप फंड को फिर जो है हमें 7-8 साल का टाइम मिल जाएगा। फ्लैक्सी कप फ्लैक्सी कैप फंड फंड जो है 7-8 साल में मुझे लगता है 3.5 से 4 गुना हो सकता है। वहां से फिर आप 50,000 विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद चौथा जो 20 लाख है वो आप लगा सकते हैं लार्ज कैप फंड में। लार्ज कैप फंड में और भी ज्यादा टाइम मिल गया आपको, तो वो भी आपको 12 से 15% का सीएजीआर तो दे ही देगा उस टाइम तक। और उसके बाद लास्ट वाले 20 लाख जो है वो आप लगा सकते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में, उसमें काफी ज्यादा टाइम। तो मुझे लगता है कि ये लास्ट वाला जो 20 लाख जो है ना वो मल्टीपल टाइम्स हो चुका होगा, और वो पैसे आपके पूरी तरह से बच जाएंगे। आपका होम लोन जो है इसके पहले ही सारा चुकता हो जाएगा। लेकिन यदि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तभी आप ये करें, क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि आपने जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, यदि कोविड जैसा टाइम आ जाएगा तो वो हो सकता है 30-40% भी नीचे आ जाए। तो वो आपके पास झेलने की शक्ति होनी चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे होम लोन चलता है, होम लोन का इंटरेस्ट रेट काफी कम होता है, तो आप वो कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आप रीपेमेंट कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उस तरह से कर सकते हैं। सर, बिकॉज टाइम एंड होने वाला है, हाँ उसके हाँ। पहले आई रियली वांट टू say thank you to you and Rashi ji and to the whole team of EIRC, because as soon as time will ring and the video will goes off, so before that I'm really glad that I shared the screen with you. I know you very well. Thank you so much. And it was really a very wonderful session having taking knowledge from you and Rashi. Thank you so much for everything, for managing the screen. Over to you, sir. Thank you. Thank you, ARC. Thank you, all the participants, for hearing me so patiently. Thank you both of you for taking out Yeah. the time and coming here and speaking about this topic. And it was a wonderful session. I would encourage all of the participants to join another session of Golden Nurture that will be held on 5th of December. So thank you, everyone. Thank you so much. Thank Yeah, you. thank you. Thank you.